قائد عوام بے قصور تھا، وہ تو ہم سمجھتے ہیں ضرور آپ اس قسم کا فیصلہ دے ہی دیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر ساتھ ساتھ قوم کو بتانا پڑے گا کہ اس جرم میں سہولت کار کون تھے، قوم کو بتانا پڑے گا کہ اس قتل میں ملوث کون تھے۔ عامر ضیاء سے لے کے ان جج صاحبان جو سہولت کار تھے، ان لوئرز جو سہولت کار تھے، ان سیاستدان جو سہولت کار تھے، وہ اس ملک کے مجرم ہیں۔ بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ قتل میں ملوث عامر ضیاء سہولت کاری کرنے والے ججز، وکلا اور سیاستدان قومی مجرم ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کوہاٹ میں خطاب، کہا کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے پر لگے خون کے دھبے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں گے۔ بلاول کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے یہاں ورکرز کنونشن نہ کریں۔ سیاستدانوں کے الیکشن لڑنے کے مقاصد ذاتی ہیں، ایک جیل سے نکلنے، دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری، رات غزہ کے مختلف حصوں میں بمباری سے درجنوں فلسطینی شہید، متعدد افراد حملے میں تباہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ رفح جانے کا حکم دے کر اسرائیل نے سڑک بمباری سے تباہ کر دی، خان یونس سے رفح جانے والوں کو مشکلات۔ غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی حملے، جبالیہ میں العودہ اسپتال کا 3 روز سے گھیراؤ جاری، قابض فوج نے 2 طبی ملازمین کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ خان یونس میں یورپی اسپتال کے قریب ایمبولینس پر فائرنگ، فلسطین ہلال احمر سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹرز کے ارد گرد شدید بمباری۔ غزہ کے رہائشی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملے میں مزید 133 فلسطینی شہید ہو گئے، شہداء کی تعداد 18,000 کے قریب پہنچ گئی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کی شدت کے باعث غذائی بحران سنگین ہونے لگا۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ غزہ میں 36% گھرانے شدید بھوک کا شکار ہیں۔ جنگ کی وجہ سے غزہ کے لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ جنگ بندی کی قرارداد میں ناکامی سے سلامتی کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچا، غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی اپیل سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا دوحہ فورم سے خطاب۔ قطری وزیر اعظم نے کہا غزہ سے یرغمالیوں کو اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے نہیں مذاکرات کی وجہ سے رہا کیا گیا، کم امکانات کے باوجود قطر جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ جنگ بندی قرارداد ویٹو کرنے کے بعد اسرائیل کی حمایت میں امریکی حکومت کا ایک اور اقدام، غزہ میں تباہی پھیلاتے ٹینکوں کے لیے 14,000 گولوں کی ہنگامی فراہمی کی منظوری دے دی، کانگریس سے منظوری لینے کا بھی انتظار نہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ہنگامی صورتحال میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فوری ضرورت ہے، اس لیے فروخت کو معمول کے کانگریس کے جائزے سے بھی استثناء دے دیا گیا۔ ہتھیاروں سے اسرائیل اپنا دفاع مضبوط بنا سکے گا۔ ہتھیاروں کی مالیت $10 کروڑ 65 لاکھ ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگی جرائم میں ساتھی ہونے کا خطرہ مول لے لیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی حرکت کو اسرائیلی جنگی جرائم کی حمایت قرار دے دیا۔ ترک صدر اردوان نے کہا امریکہ نے ناانصافی کی، سلامتی کونسل میں اصلاحات ضروری ہیں۔ پاکستان کا بھی اظہار افسوس کا غزہ کے محصور عوام کو اجتماعی سزا قابل قبول نہیں، قرارداد ویٹو کرنے پر اسرائیل کا خیر مقدم، کہا اسرائیل حماس کو ختم کرنے اور جنگ کے باقی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ جاری رکھے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی سعودی عرب، ترکیہ اور فلسطین کے وزرائے خارجہ سے ملاقات، غزہ کی سنگین انسانی صورتحال اور فوری جان بچانے والی انسانی امداد تک رسائی کی ضروریات پر تبادلہ خیال۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حقوق کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے، غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم باعث تشویش ہیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں کی مذمت، کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عالمی توجہ کی منتظر ہیں۔ فلسطینیوں پر ریاستی دہشت گردی پر عالمی برادری اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔
इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर मुनक़सिम कश्मीरी ख़ानदानों की ख़वातीन आज़ादी चौक मुज़फ़्फ़राबाद भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज रहीं। पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा, अदलिया का करप्शन में तीसरा नंबर, ठेके देने का शोबा दूसरा करप्ट तरीन इदारा रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी। सर्वे रिपोर्ट में सूबा सिंध में करप्शन में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर मौजूद, ठेके देने का शोबा दूसरे और तालीम का शोबा तीसरे नंबर पर है। पंजाब में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर, अदलिया दूसरे और सेहत का शोबा तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्ट तरीन इदारों में पुलिस का पहला नंबर, अदलिया दूसरे और टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट का शोबा तीसरे नंबर पर मौजूद। बलूचिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा पहले, पुलिस दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर। मुल्क के 47% अफराद करप्शन को पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की बड़ी वजह करार देते हैं। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में धमाके में SHO CTD जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। धमाका CTD के SHO मोहम्मद मुराद की गाड़ी के करीब हुआ। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की नहीं सबकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम को लड़नी है। CTD के अफसरान के खिलाफ अदलिया के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कराची आयशा मंजिल की इमारत में लगी आग में जलने वाले फ्लैट्स के रिहायशियों का हस्ता बस्ता घराना उजड़ गया। आग में मुकम्मल तौर पर जलने वाले फ्लैट्स में अब सिर्फ जला हुआ सामान और यादें बाकी हैं। जुज़वी तौर पर जलने वाले घरों के मकीन धुएं की बू समेत दीगर मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कि आज वो लोगों से खाना लेकर खाने पर मजबूर हैं। वो रातों रात सड़क पर आ गए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत नुकसानात का फौरी अजाला करके उन्हें माली इमदाद फराहम करे। में आके वो टी स्कैन हुआ है और अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसके बाद डॉक्टर्स की यहाँ पर तो बड़ी टीम है। चिल्लास में दहशतगर्द हमले में जान पर खेल कर शौहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शौहर का कहना है कि रोशन बीबी के ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद उनके जिस्म से मज़ीद गोलियाँ निकाली जाएंगी। गिज़र के गांव अहमद की 28 साला रोशन बीबी को चिल्लास में बस पर फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 निकाली जा चुकी हैं। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। मुल्तान में कबाड़ी के गोदाम में धमाके से एक बच्चा जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर धमाके की नौइयत का पता नहीं चल सका। पुलिस की भारी नफरी और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला शेड्यूल जाली है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के सिवा इलेक्शन कमीशन से किसी भी मंसूब बयान पर तवज्जो ना दी जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की तरदीद। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान न समझा जाए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए IPP ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त बना ली। ज़राए ने दावा किया कि इसाक खाकवानी, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल पर मुश्तमिल कमेटी ने फहरिस्त तैयार की है और ये फहरिस्त आज मुस्लिम लीग नून की कमेटी को दी जाएगी। IPP कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त देगी। कौमी असम्बली के 19 हल्कों का ताल्लुक पंजाब और 1 का कराची से है। IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब मरते हैं और केस लगता है। एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम झूठे केसेस भुगत रहे हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा बन जाता है। रावलपिंडी की एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के लिए फवाद चौधरी को अडियाला जेल से हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया। अदालत ने फवाद चौधरी को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले कर दिया।
शौकत तरीन सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन का इस्तीफ़ा मंजूर किया। चेयरमैन सेनेट से PTI के सेनेटर शौकत तरीन ने दुबई में मुलाकात की। शौकत तरीन ने मुलाकात में चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफ़ा पेश किया। शौकत तरीन ने PTI की रुकनीत से चंद रोज़ कबल इस्तीफ़ा दिया था। मुल्क के भलाई और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4, गिलगित में -3, कोयटा और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड। दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली के बाद लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी का मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। पैसे लिए फिर रहे हैं, फिर भी हमें खाद नहीं मिल रही। लाइनों में लगे हुए हैं, फिर भी खाद नहीं है, ब्लैक रेट पे भी नहीं है। हमने तो लेनी है कुछ बोरियां, जो ज़्यादा बड़े ज़िम्मेदार हैं उनको मिल रही है, हमें वो भी मिल रही। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान। 3,750 रुपए की खाद की बोरी 5,200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है कि डीलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ मसनूई क़िल्लत का जवाज़ बनाकर खाद को ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। निगरान वज़ीर सनअत और तिजारत गौहर एजाज का नोटिस। कहा खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को हिदायत कर दी है कि पैदावार और सप्लाई में कमी ना आने दें। हुकूमत ने दरामदी खाद के ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। हफ्ता भर दफातर में सर खपाने वाले छुट्टी के दिन बचत बाजारों में महंगाई से अपना खून जलाने पर मजबूर। मार्केटों में हर चीज़ के 2 रेट हैं, एक सरकारी दूसरा व्यापारी। दूध से लेकर गोश्त तक और गोश्त से लेकर आलू, टिंडे, भिंडी, लौकी, प्याज, टमाटर, गाजर और मूली। व्यापारी खरीदारों से हर चीज़ की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि सस्ते बाजारों में कुछ भी सस्ता नहीं। शिकायत के बावजूद बेलगाम व्यापारियों को लगाम नहीं डाली जा रही। दस साल बाद पंजाब की 1100 नहरों की भल सफाई का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। भल सफाई 26 दिसंबर से शुरू होगी, 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को नहरों की भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा नहरों की मरम्मत पर भी तवज्जो दी जाए। नहरी पानी की चोरी के सद्दबाब के लिए मौसर कार्रवाई का भी हुक्म। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी को MD सैंडक मेटल्स के ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने राजिक संजरानी को MD सैंडक मेटल्स के ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने राजिक संजरानी को ओहदे से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजिक संजरानी 15 साल तक MD सैंडक मेटल्स के ओहदे पर फाइज रहे। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत पर तकरीब। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फातिहा खानी फूल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने इस साल का मरकज़ी ख्याल आज़ादी, मसावात और इंसाफ हर इंसान के लिए रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में लाखों शहरी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंसाफ, रिहाइश और ज़रूरी खुराक समेत कई अहम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। बरतानिया में मुकीम लोगों का अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना अब और भी मुश्किल हो गया। अब घर वालों को बरतानिया बुलाने के लिए सालाना आमदन की शर्त 18,600 पाउंड से बढ़ाकर कम अज़ कम 38,700 पाउंड कर दी गई। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। इन शराइत का निफाज सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स पर नहीं होगा। कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए किया गया। आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया आने वाले तलबा को भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी।
जबालिया से गिरफ्तार फलस्तीनियों से तौहीन आमेज सलूक का एक और वाकया सामने आ गया। इस बार बरहना कैदियों को असलहा थमाकर फोटोशूट भी कराया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग एक से ज़ायद बार की गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक जिस शख्स को हथियार फेंकते दिखाया गया वो फ़लस्तीनी ताजिर है। इसराइली वज़ीर आज़म की मुशीर का तौहीन आमेज सलूक का दिफा। बरतानवी टीवी पर कहा कि ऐसा करने से दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, वैसे भी मशरिक़ वस्ता में गर्म मौसम होता है। हमास के हमलों में 2000 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी माजूर हो गए। इसराइली अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक 5000 से ज़्यादा ज़ख्मी इसराइली फ़ौजी अस्पताल लाए गए, जिनमें 58% शदीद ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज अब तक 420 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर चुकी।